Okay, welcome back once again to all my dear students. Today, in the next video, we are going to discuss about the electronic configuration and types of element, that is S, P, D and F block, right? But before starting this video, let us revise the topic which we had discussed yesterday. Yesterday, we are talking about the electronic configuration of different elements which are present in the group and periods, right? So how you have to write down the electronic configuration, that you all know that according to the Aufbau rules, that the orbital having a less amount of energy, in that orbital first the electron will be filled. And you all know that in S block how many capacity of electron is there? So 2 electron. In the P it is a 6, in the D it is a 10, and in the F it is a 14 electron, right? So now today we are going to start the electronic configuration and types of element. Let us start the next topic, electronic configuration and types of elements and types of elements, that is a S, P, D and F block. Understand? Let us start. First of all, you all know that the element will be classified into 4 different blocks. First, that element is classified into S block, P block, D block and F block, right? Based on the orbital of element filled with electron, based on the orbital filled with इलेक्ट्रॉन, लास्टली यहां पे देखो एस ब्लॉक का एलिमेंट है, पी ब्लॉक का एलिमेंट है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है या तो एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, वो हम कैसे डिसाइड करते हैं? दैट इज डिपेंड्स अपॉन एट लास्ट द इलेक्ट्रॉन विल बी एंटर इनटू द पर्टिकुलर ऑर्बिटल. अगर लास्ट में इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में एंटर होता है तो उस एलिमेंट को हम बोलते हैं एस ब्लॉक. अगर लास्ट में इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में एंटर होता है तो उसको बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट. लास्ट में डी ऑर्बिटल में एंटर होता है तो डी ब्लॉक एलिमेंट. एंड इन लास्ट इफ द इलेक्ट्रॉन इज एंटर इन द एफ ऑर्बिटल देन दोस एलिमेंट्स आर बिलोंग्स टू एफ ब्लॉक एलिमेंट. अंडरस्टैंड? ये बात आपको मालूम होनी चाहिए. ओके, बट two different elements are found exceptional. Hydrogen and helium are exceptional case. Exception. Why? क्योंकि हाइड्रोजन को मुझे पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है, और हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है, राइट? ये देखो, तो यहां से ऐसा लगता है कि हीलियम इट विल बी द एलिमेंट ऑफ एस ब्लॉक. हाइड्रोजन एंड हीलियम अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम ऐसा कह सकते हैं कि हाइड्रोजन में लास्टली इलेक्ट्रॉन आर एंटर इनटू एस ऑर्बिटल, एंड हीलियम में भी देखो कि इलेक्ट्रॉन लास्ट में कहां पे एंटर होता है तो एस ऑर्बिटल. सो वी कैन से दैट बोथ हाइड्रोजन एंड हीलियम इज बिलोंग्स टू एस ब्लॉक एलिमेंट. एस ब्लॉक में आना चाहिए, बट इट मे बी कंसीडर्ड इन ग्रुप 18. हीलियम, यहां पे देखो पहले हीलियम की बात करते हैं कि हीलियम इट विल बी द एलिमेंट ऑफ एस ब्लॉक. यहां पे देखो हीलियम विल बी द एलिमेंट ऑफ एस ब्लॉक. हीलियम
किस ब्लॉक का एलिमेंट होना चाहिए? एस ब्लॉक का। क्यों? क्योंकि लास्ट में इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में एंटर होता है। इज इट क्लियर? सो इट विल बी द एलिमेंट ऑफ एस ब्लॉक, राइट? बट वी कैन से बट its place may be considered in the ground, that is a 18 block. Is it clear? But its place may be considered in ground, that is 18 group. Why? Because whatever the element which are present in the 18 group, all those elements are inert or noble gas. So helium is also a noble. So that's why the helium should not be placed in the s block element. Is it clear? Right? Because we can say it has the property of helium is similar to that of noble gas, because the properties of helium is similar to that of noble gas. किसकी प्रॉपर्टी सिमिलर है? हीलियम की। किससे? तो ग्रुप नंबर 18 से। Why? Because due to its completely filled valence shell, due to its completely filled वैलेंस सेल। यहां पे देखो कि वैलेंस सेल ग्रुप नंबर 18 का कंप्लीटली फिल्ड है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट हीलियम विल बी प्लेस्ड इन द ग्रुप नंबर 18। अंडरस्टैंड? ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। वैसे ही सो वी कैन बी प्लेस इन द ग्रुप नंबर 1 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन is placed in group 1. Why? Because at last the electron will be entered into the noble gas, right? And the noble gas, here we can also say the behavior of this element, but it should not be placed because in the group number 1 the alkali matter is there, but in group 1 alkali matter is present. So hydrogen should not be placed in the group number 1. Is it clear? Same way there is a two possibility for the helium. That is we can also say thus its behavior is similar to the element of group number 17. Its behavior is similar to the element of group 17. Why? Because in the group number 17 fluorine, chlorine, bromine, iodine is there, so it has a tendency to gain the electron, one electron, and becomes a stable octet state. सेम वे यहां पे भी क्या आएगा कि हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और वो स्टेबल ऑक्टेट स्टेट में कंप्लीट हो जाएगा, जस्ट लाइक अ noble gas. Understand? So but the hydrogen should not be placed in the group number 1, neither group number 1 nor group number 17. It is placed at the middle, at the top of the periodic table, right? So we can say but hydrogen is placed separately, but hydrogen is placed separately at the in the middle, at the top of periodic table, in the middle, at the top of periodic table, चलो इतना लिखो पहले।
चलो अब हम बात करेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट, देन पी ब्लॉक एलिमेंट, देन डी ब्लॉक एलिमेंट एंड देन एफ ब्लॉक। पहले तो देखते हैं, चलो पहले एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, एस ब्लॉक एलिमेंट पहले तो मैं ऐसा लिखूंगा, द इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड एट लास्ट इन एस ऑर्बिटल, द इलेक्ट्रॉन आर filled at last in s orbital, right? Example, group number 1, that is a alkali metal, and group number 2 alkaline earth metal. Why? Because group number 1 and group number 2, that we can say is a s block element, because at last the electrons are entered into the s orbital, right? हम ऐसे बोलते हैं कि ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 में जो भी एलिमेंट है वो s ब्लॉक का एलिमेंट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि लास्ट में इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में एंटर होता है, राइट? अभी यहाँ पे आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी क्या आएगी, ns1, और इसकी क्या आएगी, ns2। अंडरस्टैंड? इज इट क्लियर? एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट s ब्लॉक एलिमेंट दे आर रिएक्टिव मेटल विद द लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। s block elements are reactive metal with low ionization enthalpy, low ionization enthalpy। ये इंपॉर्टेंट है। अभी देखो कि एस ब्लॉक में जो भी एलिमेंट है वो मेटल है, रिएक्टिव मेटल है। जस्ट लाइक इफ आई टेक वन एग्जांपल कि ग्रुप नंबर 1, ग्रुप 1 में क्या आएगा, तो यहां पे मैं लिखता हूं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंचियम। यहां पे मैं लिखता हूं ग्रुप नंबर 2, ये देखो 1 और 2 में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, राइट? ये ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट है। अभी देखो कि यहां पे मैंने लिखा कि लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द आयोनाइजेशन एंथैल्पी? आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसको बोलते हैं? कि जब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो भी एनर्जी चाहिए उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अभी देखो कि लो, यहां पे ऐसा लिखा है कि इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो है। क्यों लो? तो देखो कि लिथियम है, यहां पे देखो ये एक ही पीरियड के एलिमेंट है लिथियम, यहां पे मैं लिखता हूं n = 2, सेकंड पीरियड के, राइट? तो लिथियम, देन बेरिलियम, देन बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन, राइट? तो इसका एटॉमिक नंबर है 3, यहां पे 4, ये 5, ये 6 और ये 7, राइट? तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 एंड 2s1, इसकी 1s2 2s2 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s2 2p2 एंड 1s2 2s2 2p3। यहां पे देखो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विल रिमेन सेम, ये n = 1 और n = 2, यहां पे भी n = 1 और n = 2, ये भी n = 1 n = 2, ये भी n = 1 n = 2, ये भी n = 1 n = 2। यहां पे देखो क्या हुआ, ये साइज डिक्रीज हुई, एटॉमिक रेडियस विल बी डिक्रीज। व्हाई? बिकॉज यहां पे जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ये कम है। यहां पे कितना होगा, प्रोटॉन 3 है, यहां पे प्रोटॉन कितना है 4, यहां पे प्रोटॉन कितना है 5, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विल बी इंक्रीज। तो यहां पे प्रोटॉन और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, तो इनके बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लेस है तो अट्रैक्शन भी कम होगा, तो उसकी साइज क्या होगी, बड़ी, राइट? तो टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन यू रिक्वायर द लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना हो तो मुझे
एनर्जी कम चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी साइज बड़ी है तो अट्रैक्शन वो कम है। अगर अट्रैक्शन कम है तो वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए मुझे लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। तो इसमें ऐसा ही आएगा ना, सभी पीरियड में कंपेयर करें तो अल्कली मेटल में लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी साइज क्या है? बड़ी है। किससे? तो द एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन द सेम पीरियड, उसी पीरियड में जो एलिमेंट प्रेजेंट है उससे उसकी साइज बड़ी है। तो टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन यू रिक्वायर द लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्यों कम एनर्जी चाहिए? क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्शन कम है। जैसे भी हम आगे बढ़ेंगे, मींस एज यू गोस ऑन इंक्रीजिंग द एटॉमिक नंबर, then the effective nuclear charge will be increased, and so the force of attraction is also increased, and that's why we can say that you require the more amount of energy to remove the electron. वैसे ही हम ऐसे भी बोलते हैं कि नाइट्रोजन के बाद क्या आएगा? तो ऑक्सीजन 8, then fluorine 9, and then neon, that is 10. This requires the more amount of energy. It's not possible. इसको पॉसिबल नहीं है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं नोबल गैस। क्या बोलते हैं? नोबल गैस। इट डजंट हैव टेंडेंसी टू गेन और टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट और लूज द इलेक्ट्रॉन। अंडरस्टैंड? सो ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। सो ऑल दिस एलिमेंट वी कैन से इट इज अ अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, दैट इज अ एस ब्लॉक एलिमेंट। आउटर मोस्ट ऑर्बिट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आनी चाहिए। चलो लिख दो। चलो अब लिखेंगे हम पी ब्लॉक एलिमेंट। नेक्स्ट वन इट मीन्स पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स। चलो पी ब्लॉक एलिमेंट किसको बोलते हैं? तो वी कैन से द एलिमेंट इन विच द p ऑर्बिटल इज फिल्ड एट लास्ट। द एलिमेंट in which p orbital is filled at last is called p block element। कहां से कहां तक? तो ये भी हमको मालूम होना चाहिए कि ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 18, ग्रुप 13 to group 18 belongs to p block element, right? And if you want to write down the electronic configuration, इसकी outermost orbit electronic configuration। चलो तो क्या है? ns2 np1 to ns2 np6। ये देखो राइट, ये कैसे? तो मैं लिखता हूं ग्रुप नंबर 13 का कोई भी एक एलिमेंट लिखो कि फॉर एग्जांपल यहां पे है बोरॉन 2, ग्रुप नंबर 18 में है नियॉन, तो ये 5 है और ये 10 है। अब इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 and 2p1। ये देखो ns2 np1 2 1s2 2s2 2p6, तो इसकी देखो ns2 np6 तक। Understand? So this is the outermost orbit electronic configuration. These things we have to know. Okay? And group number 18, that we can say it is a noble gas, inert gas, right? It neither gain nor lose the electron. That is a group number 18. Then here we can say that group 18, that we can say noble gas, neither gain nor lose the electron. Do not gain or lose the electron. Do not gain or lose the electron। किसको इलेक्ट्रॉन आप देते भी नहीं है और किसके पास से लेते भी नहीं है, राइट? ये बात आपको मालूम होनी चाहिए।
Is it clear? All are the gaseous elements. Okay. फिर बाद में ग्रुप नंबर 17, ग्रुप 17 को हम बोलते हैं हैलोजन ग्रुप, हैलोजन ग्रुप, राइट। इसमें X मीन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, iodine and astatine. All these elements are present, right? So group number 17 we can say it is a, and group number 16 and 17, 16 group number 16 we can say chalcogen, group number 16 we can say chalcogen. Is it clear? Right? Okay, and S and P block is said to be the representative element. S and P block are called representative element and main group element. S and P block are called representative or main group element। अभी देखो, इसको रिप्रेजेंटेटिव भी बोलते हैं और मेन ग्रुप भी एलिमेंट बोलते हैं। यहां पे इन पी ब्लॉक मेटल, नॉन मेटल एंड सेमी मेटल्स आर प्रेजेंट, राइट। यहां पे मेटल भी है, नॉन मेटल भी है एंड सेमी मेटल इज आल्सो देयर, सेमी मेटल। इसीलिए हम ऐसा बोलते हैं कि पी ब्लॉक की स्टडी हमको 11th स्टैंडर्ड में भी करनी है और 12th स्टैंडर्ड में भी एक चैप्टर आएगा पी ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट। सो सभी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज, देयर प्रिपरेशन, देयर फिजिकल प्रॉपर्टी, देयर केमिकल प्रॉपर्टी, ऑल दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी एंड द कंपाउंड, द डिफरेंट कंपाउंड व्हिच कैन बी फॉर्म बाय द डिफरेंट एलिमेंट्स, राइट। तो ये सब हमको पी ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ना है। ओके, कोई आपको ऐसा पूछे कि ग्रुप नंबर 15 की आउटर मोस्ट ऑर्बिट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो ये 13 की है तो 15 की क्या आएगी, ग्रुप 15 की क्या आएगी, तो NS2 और NP3। ये देखो, राइट। 13 में 3, 15 में 5, 18 में 8। इज इट क्लियर? सो दिस इज द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, चलो लिख लो एक बार। चलो अभी हम बात करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट की। डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक या पहले एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड इन द डी ऑर्बिटल, एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन are filled in d orbitals, right? This element is said to be the transition। इसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाना हो तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट से बनता है, राइट। फिर बाद में हम ऐसे भी बोलते हैं कि ग्रुप नंबर 3 to 12, group number 3 to group 12 belongs to D block element. All are metal, right? And here we can also say the outermost orbit electronic configuration, outermost orbit electronic configuration क्या आएगा, तो n-1 d, n-1 d 1 to 10, ns 1 to 2। ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं, ये कैसे, अगर मैं यहां पे लिखता हूं स्केलेरियम और यहां पे मैं लिखता हूं जिंक, राइट। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसका एटॉमिक नंबर है 21 और इसका 30। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कैसे लिखता हूं, तो
यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि argon 18 and 3D1 and 4s2, राइट। तो ये देखो ये क्या आया, n-1, n कितना है 4, n2, और यहां से argon 3D10 4s2, यहां पे देखो 1 से लेके 10 तक, तो 1 - 10 नहीं है पर 1 to 10 in between, this is the electronic configuration of d orbital। ये कौन सा ग्रुप आएगा स्कैंडियम में, तो ग्रुप नंबर 3, फिर बाद में ग्रुप नंबर 4, देन 5, देन 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12, राइट। इज इट क्लियर? सो दिस इज हाउ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देयर इज अ आउटर मोस्ट ऑर्बिट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर आपको यहाँ पे देखो एस टी वडोदरा कॉर्पोरेशन फेकोनीकुंज, अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये क्रोमियम है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो कैसे लिखते हैं, आर्गॉन तो है और फिर बाद में 3D क्या आएगा, ये 24 है ना, ये 24 या तो 3D4 और 4s2, तो इसमें से ये दिस नॉट अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए मैं कैसा लिखता हूँ AR 3D5 इज द कंप्लीटली हाफ फिल एंड 4s1, राइट। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर 1 to 2। इज इट क्लियर? सेम वे अगर मुझे इसकी लिखनी हो 29 है कॉपर की, तो ये मैं ऐसा लिख सकता हूँ AR 3D9 and 4s2, राइट ना, ये 18 आ गया ना, आर्गन का 18 प्लस 9 27 29, अंडरस्टैंड, 27 प्लस 2 29। अभी देखो कि ये दिस इज द नॉट स्टेबल, यहां से एक इलेक्ट्रॉन क्या पे आएगा यहाँ पे, तो ये स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो गई, तो 3D10 और 4s1, राइट। इज इट क्लियर? सो दिस इज हाउ, दिस इज द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये सब आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक्सप्लेन किया, लिखने की जरूरत नहीं है, ओनली राइट डाउन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सब लिखते हैं। ये कैसे आया ना, ये मैंने बताया। ये था डी ट्रांजिशन एलिमेंट, ओके। And last one, now we are going to discuss, that is the F block element. अब लास्ट में F block element number 4, this we can say inner transition element, क्या बोलते हैं इसको, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ओके। कौन कौन से F block एलिमेंट, एट लास्ट द इलेक्ट्रॉन आर एंटर इन द F ऑर्बिटल, देन वी कैन से lengthenoid and actinoid series। फर्स्ट लेट अस सी lengthenoid, किससे कैसे, सेरियम Z equals to 58 to lutetium, that is the lutetium Z equals to 71, lutetium Z equals to 71, okay। and actinoid series, actinoid में क्या आएगा, thorium Z equals to 19 to lawrencium Z equals to 103, राइट। ये सब एलिमेंट है जो F ऑर्बिटल को बिलोंग्स करते हैं। उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, देखो अगर मैं लिखता हूं n-2 F1 to 14 n-1 D 0 to 1, right, and ns2, okay, and ns2. So this is the outermost orbit electronic configuration of F block element, and this we can say inner transition element, understand? Right, and you have to know that which one is semi metal, semi metal कौन कौन सा है, तो semi metal कौन आएगा, semi metal, चल
पहले तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सिलिकॉन, germanium, arsenic, then we can say this is antimony, tellurium, right? All these are the what? Semi metal. Okay, ये F block element we can say it is an inner transition element. F block element में लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज है. लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज में जितने भी एलिमेंट है वो रेडियो एक्टिव है. लैंथेनॉइड यूनियन में कौन सा एलिमेंट रेडियो एक्टिव? दैट इज अ पीएम, दैट इज अ प्रोमीथियम, दैट वी कैन से इट इज अ रेडियो एक्टिव, राइट? सो ऑल these things you have to remember. Okay, so up to here it's enough. Today we have discussed about S block, P block, D block and F block. S block, that is a group number 1 2. P block, that is a group number 13 to 18. D block, that is a group number 3 to 12, and F block, that is a lanthanoid and actinoid series. Okay, so up to here it's enough. In the next video we are going to discuss about the periodic trends in the properties of elements, right? That is atomic radius, ionic radius, ionization enthalpy, electron gain enthalpy, electronegativity, all these things we have to discuss. Okay, so thank you very much.